Hello dear MSc Microbiology students, welcome to the another video lecture of the MBTE23, that is the nitrogen metabolism, photosynthesis and respiration. Okay, we have started with the chapter. We have completed the important points of it, like be it with the nitrogen fixation, be it with the nitrogenase enzyme, even the biochemistry of nitrogen fixation. And in the last lecture it was all about the nitrogenase enzyme. Okay, what is the structure of nitrogenase enzyme and how the structure is going to help the nitrogenase to fix the nitrogen. Okay, so in this lecture we will move ahead with the new point of the syllabus, that is the uh, that is one more important factor of the nitrogen metabolism, assimilation of the ammonia. Okay, in the syllabus it is given assimilation of ammonia, but before actually going towards the assimilation of ammonia and all those things, I will tell you about the regulation of the nitrogenase, because in the last lecture we have just seen about the properties of the nitrogenase enzyme. We have not learned about the regulation. Regulation is also an important point of the syllabus, because if nitrogenase works, we need to know when it stops, when it works, and when it needs to be inhibited, how the signaling is done. All sort of things we are going to see in this particular lecture. Okay, so we will start. So if you remember, we have learned about the nitrogenase enzyme. We have seen that nitrogenase enzyme is been having the two important parts in it, that is the dinitrogenase and the dinitrogenase reductase. Okay, Fe part and FeMO part. Now in this lecture we will see that how the nitrogenase enzyme is being regulated. Okay, so nitrogenase, any enzyme, I would say any enzyme needs to know that when to start and when to stop. Okay, because कोई भी चीज़ अगर हो रही है तो उसका रेगुलेशन, या फिर कोई प्रोसेस जो हो रही है उसका रेगुलेशन होना बहुत इम्पोर्टेंट है. अब प्रोसेस होती रहनी चाहिए, या वो कब होनी चाहिए, कब नहीं होनी चाहिए, कब स्टॉप रहनी चाहिए और किस स्पीड में होनी चाहिए, वो सब चीज़ें हमारी जो बॉडी में भी होती है या फिर हमारे अराउंड भी होती है, उसका एक प्रोसेस होता है. ठीक है, उसको रेगुलेट किया जाता है ताकि वो डिसबैलेंस ना बने. ओके, क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो गई, कोई चीज़ कम हो गई, तो इट क्रिएट्स अ डिसबैलेंस. ओके, एंड द होल थिंग कोलैप्स. तो ये ना हो इसलिए उसका रेगुलेशन किया जाता है. नाउ हियर यू हैव द पॉइंट, दैट इज़ द रेगुलेशन ऑफ नाइट्रोजिनेस. ओके, तो इसका मतलब क्या है कि हमें नाइट्रोजनस एंजाइम को रेगुलेट कैसे किया जाता है ये देखना है. ठीक है, कि वो कब स्टॉप होती है, कब स्टार्ट होती है और कैसे वो ये सब करती है. ठीक है, नाउ फर्स्टली अगर हम थोड़ा सा रिवाइज कर ले तो जो भी नाइट्रोजनस की एक्शन है, ठीक है, वो ये है कि वो नाइट्रोजन जो होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, उसका फिक्सेशन करती है, उसको कन्वर्ट करती है इनटू द वैल्यूएबल प्रोडक्ट, दैट इज़ द अमोनिया. नाउ when we see the reaction, you can see it clearly. Nitrogen using the 8 hydrogen atoms, 16 ATPs, 16 H2O, 8 electrons is been converted into 2 ammonia molecules. Okay, the product form is 2 ammonia molecules. Along with that H2 ADP and 16 PI. Okay, but the main important thing you can notice here is it is the high energy consuming process. You can see 16 ATPs लगते हैं यहाँ पे ओवरऑल, तो इट इज़ अ वेरी हाई एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस. तो ये वेस्टेज ना हो. अगर आप ही सोचो, अगर बेवजह की ये प्रोसेस मतलब बॉडी में प्लांट्स की बॉडी में नाइट्रोजन है ऑलरेडी, उसके प्रोडक्ट्स है ऑलरेडी, उनको ज़रूरत नहीं है, तब भी अगर उन्होंने प्लांट्स ने ये प्रोसीजर चालू रखा तो ऑब्वियस सी बात है उनकी एनर्जी बहुत वेस्ट होने वाली है. क्योंकि वो एक तो वो नाइट्रोजन को ले नहीं सकता, और उनको लेने के लिए उनको कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटी करनी पड़ेगी, और वो एक्टिविटी होने के लिए बहुत सारी एनर्जी लगेगी, वो नहीं चाहिए. तो दैट्स वाई यहाँ पे रेगुलेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो ये जो सॉइल नाइट्रोजन होता है, लाइक एज वी नो, नाइट्रेट होता है, नाइट्राइट होता है, सॉरी, उनका लेवल अगर सॉइल नाइट्रोजन का हाई
है तो ऑब्वियस सी बात है उनको एक्स्ट्रा से नाइट्रोजन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए नोड्यूल्स के थ्रू अगर नाइट्रोजन की अगर हम बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजन फिक्स हो रहा है नोड्यूल्स के थ्रू, तो उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हाँ सॉइल में बहुत सारा नाइट्रोजन है ऑलरेडी। तो अभी हमें इसको प्लांट्स को इस नाइट्रोजनेस को इनिबिट करना है, ठीक है। तो अब होता क्या है, एक तो ये नेचुरली होता है, उनमें कुछ मॉलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोजन होते हैं या फिर नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं जो नेचुरली नाइट्रोजनेस को इनिबिट कर सकते हैं, ठीक है, उनमें होते हैं। अलॉन्ग विथ दैट इसका जेनेटिक लेवल पे भी बहुत ख्याल रखा जाता है कि नाइट्रोजनेस कब एक्टिव रहेगा कब नहीं रहेगा। तो ये जो जेनेटिक लेवल की अगर हम बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जीन्स यहाँ पे आएंगे, कोई जीन्स इन्वॉल्व होंगे, कुछ जीन्स इनिबिट होंगे, कुछ जीन्स रेगुलेट होंगे, जैसे हम लैक ऑपेरॉन में देखते हैं। लाइकवाइज यहाँ पे भी वही चीज़ होती है, उसको रेगुलेट होने के लिए वो चीज़ लगती है, जीन्स को एक्टिवेट होना लगता है, जीन्स को डीएक्टिवेट होना लगता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो ये नाइट्रोजनेस का कंट्रोल होता है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दी ट्रांसक्रिप्शनल लेवल मॉडिफिकेशन। मतलब ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, मतलब अभी ज़रूरत नहीं है नाइट्रोजनेस की, तो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे ही कुछ चेंजेस कर दो ताकि वो ना आगे बढ़े, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे हो रहा है, मतलब जेनेटिक लेवल पे हो रहा है। तो वो कैसे होता है, आपको ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग भी पता है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या, कि जो डीएनए है उसको एमआरएनए में कन्वर्ट करना, ठीक है। और एमआरएनए होने के बाद ही वो आगे जाके कोई प्रोडक्ट बनेगा। तो एमआरएनए नहीं बनेगा तो आगे जाके कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाएगी। नाउ ट्रांसक्रिप्शनल लेवल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो जीन इन्वॉल्व होता है वो है नाइफ जीन, ओके, NIF। नाइफ जीन जो होता है इट इज़ द वन जो कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि नाइफ जीन ही नाइट्रोजनेस के लिए I would say nitrogenase is been controlled by the knife gene. So knife gene is been regulated for the regulation of nitrogenase. Okay, वो regulate हुआ मतलब nitrogenase automatically. Now knife gene जो है it is a gene which encodes for the nitrogenase enzyme. Now regulation of the knife gene at the transcriptional level is done by the nitrogen sensitive NIFA protein. याद रखो आप ये चीज़, नाइफ जीन को जो कंट्रोल करता है, नाइफ जीन को कंट्रोल करने वाला जो एलिमेंट है वो है नाइफ ए। नाइफ ए किसको कंट्रोल करेगा, नाइफ जीन को। नाउ ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि व्हेन देयर इजंट इनफ फिक्स्ड नाइट्रोजन अवेलेबल, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि कोई ऐसा फैक्टर लगना चाहिए जो नाइफ जीन को ट्रिगर करे। तो यहाँ पे एक फैक्टर है NTRC, ओके, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। NTRC क्या करता है, वो ये चीज़ कंट्रोल करता है। पहला आप याद रखो, NTRC क्या करेगा, वो नाइफ ए को कंट्रोल करेगा, और नाइफ ए जो है वो किसको कंट्रोल करेगा, नाइफ जीन को, ठीक है। नाउ यहाँ पे होता क्या है कि नाइफ ए जो होता है वो कंट्रोल किया जाता है बाय द NTRC, ओके, नाइट्रोजन सी, यू कैन से इट नाइट्रोजन सी। अब होता क्या है कि नाइट्रोजन सी क्या करेगा, NTRC नाइफ ए को एक्टिवेट करेगा, नाइफ ए किसको एक्टिवेट करेगा, नाइफ जीन को एक्टिवेट करेगा, और नाइफ जीन क्या करेगा, नाइट्रोजन जिनेस सिंथेसिस करेगा, ठीक है। अब ये चीज़ होनी कब है, जब प्लांट्स को नाइट्रोजन की एक्चुअल में ज़रूरत है, ठीक है। अभी हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं कि नाइट्रोजनेस की अभी ज़रूरत है प्लांट्स को। तो अगर नाइट्रोजनेस की ज़रूरत है तो ऑब्वियस सी बात है किस जीन की ज़रूरत पड़ेगी, नाइफ की। और नाइफ जीन के एक्टिवेशन के लिए जो फैक्टर इंपॉर्टेंट है वो है नाइफ ए, और नाइफ ए को एक्टिवेट करने के लिए जो फैक्टर इंपॉर्टेंट है वो है NTRC। ऐसा एक साइकिल है, ठीक है। तो ये चीज़ होनी चाहिए सो दैट कि नाइफ जीन एक्टिवेट हो और नाइट्रोजनेस बने। अब नाइट्रोजनेस कब बननी है, जब नाइट्रोजनेस की ज़रूरत है, मतलब नाइट्रोजन की ज़रूरत है बॉडी में, प्लांट्स के नाइट्रोजन नहीं है, तभी ये सब चीज़ें होंगी। अब ये हुई पॉजिटिव एस्पेक्ट, ठीक है। और नाउ ओके, आई विल टेल यू द अनदर वन। अब एक और जीन पिक्चर में आता है, वो है नाइफ एल नाम का जीन, ठीक है। नाइफ एल क्या करता है, अब ये हमने पॉजिटिव वाले की बात की, अब ये निगेटिव एक्शन कौन करता है, नाइफ एल जो होता है वो नाइफ ए को, जो नाइफ ए हमारा मेन हीरो नाइफ ए है, ओके, जहाँ पे NTRC उसको बढ़ावा देता है कि वो अपना काम करे,
उसके ऑपोजिट नाइफ एल जो है वो उसको रोकता है काम करने से। अब वो कब होगा? ऑब्वियसली बॉडी में प्लांट्स के बहुत सारा नाइट्रोजन है, बहुत सारे उसके कंपाउंड से, अभी उसको नहीं चाहिए नाइट्रोजनेस। अब उसको करना ये है कि नाइट्रोजन को ब्लॉक कर दो, मत काम करो अब तुम, अभी है हमारे पास सब कुछ। तो उस टाइम पे क्या होगा? NIFL जीन विल कम इन पिक्चर, इट विल जस्ट डीएक्टिवेट द नाइफ ए, और नाइफ ए डीएक्टिवेट हो गया मतलब जो आगे का है वो है मेन नाइफ जीन, वो डीएक्टिवेट हो जाएगा और नाइट्रोजनेज की एक्शन बंद। ठीक है, तो आपको याद कौन से जीन्स रखने हैं? नाइफ, पहले तो नाइफ जीन ही है जो अपने करता धरता है, वो है नाइफ जीन। ओके, नाइफ जीन का रोल क्या है? नाइट्रोजनेज सिंथेसिस करना। नाइफ जीन को कंट्रोल कौन करता है? नाइफ ए। मतलब अगर नाइफ जीन को बनाना है या बिगाड़ना है तो काम कौन करने वाला है? नाइफ ए। तो नाइफ ए पे एक हीरो है और एक विलन है। हीरो कौन है यहाँ पे? NTRC हीरो इसलिए क्योंकि वो नाइफ ए को एक्टिवेट करेगा, नाइफ को एक्टिवेट करेगा और जीन सिंथेसिस हो जाएगा। विलन यहाँ पे है नाइफ एल का थोड़ा सा ऑपोजिट है। वो क्या करेगा? वो सीधा जाके अटैक करेगा नाइफ ए पे। नाइफ ए ख़त्म तो नाइफ भी ख़त्म और नहीं होगा नाइट्रोजनेज सिंथेसिस। ये आपकी सब जीन्स के बारे में सब ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे बात हो गई। ठीक है, अब ये जो नाइफ जीन है, अब इनका लोकेशन भी हम जान लेते। तो ये क्रोमोसोम पे रहते हैं या फिर ज़्यादातर बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड्स होते हैं उन पे ये जीन रहते हैं। ठीक है, अब पोस्ट ट्रांसलेशनल मैकेनिज्म की बात करेंगे, मतलब अभी प्रोटीन सिंथेसिस हो चुका है उसकी बात की हम बात करेंगे। ठीक है, अब ये जो पोस्ट ट्रांसलेशनल है, जो हमने पहले वाला देखा नाइफ वाला, वो होता है जनरली सिम्बायोटिक वालों में। ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में जो बैक्टीरिया रहते हैं उस केस में जो नोडल फॉर्मेशन वगैरह की हम बात करते हैं वहाँ पे नाइफ जीन का सब होता है। बट अगर हम बात करें फ्री रहने वाले, जो हमने डिस्कस भी किया था, नॉन सिम्बायोटिक जो होते हैं उन बैक्टीरिया की अगर हम बात करें या फंगाई की बात करें, तो वहाँ पे जो मैकेनिज्म होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। वहाँ पे पोस्ट ट्रांसलेशनल मैकेनिज्म होता है। तो वो कौन सा है? तो फ्री लिविंग जो डाइजोट्रॉप्स होते हैं, डाइजोट्रॉप्स मतलब क्या? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सर्स। नाउ ये जो डाइजोट्रॉप्स होते हैं उनमें थोड़ा सा अलग होता है। तो उनमें रेगुलेशन कैसे होता है? तो it is during the energy limiting or the nitrogen sufficient condition, the nitrogenase complex is rapidly and reversibly inactivated by ADP ribosylation of Fe protein। अगर आपको नाइट्रोजनेस का स्ट्रक्चर याद है तो उसमें दो एलिमेंट्स होते हैं, Fe, MOFE। यहाँ पे इनका टारगेट है कि Fe एलिमेंट को ही ब्लॉक कर दो ताकि एंजाइम पूरी ब्लॉक हो जाए। ओके, होता क्या है यहाँ पे? ADP राइबोजिलेशन होता है। मतलब क्या? एक स्पेसिफिक जगह होती है, दैट इज़ दी अर्जिनिन। आपको पता होगा प्रोटीन में अमाइनो एसिड होते हैं, तो उसमें से जो अमाइनो एसिड होता है जो 101 नंबर का अर्जिनिन, वहाँ पे टारगेट किया जाता है बाय दी एंजाइम्स, और वहाँ पे होता है ADP राइबोजिलेशन। ठीक है, इन the presence of the ADP ribose group prevents the association of the Fe with the MOFE and this results in the regulating the nitrogen fixation। मतलब अगर ज़रूरत नहीं है नाइट्रोजनेज एंजाइम की तो किया क्या जाता है? किया क्या जाता है? तो जो Fe एलिमेंट होता है, ठीक है, उसको ब्लॉक किया जाता है बाय द ADP राइबोज एडिशन। ठीक है, ADP राइबोज एडिशन एट दी अर्जिनिन ग्रुप। ओके, अर्जिनिन ग्रुप पे एडिशन किया जाता है। इससे क्या होता है कि Fe जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है क्योंकि उसकी बाइंडिंग साइट, मैंने आपको बताया था Fe पे बाइंडिंग साइट होती है रिडक्टेज की, तो सॉरी Fe पे बाइंडिंग साइट होती है MOFE की एंड ATP की। ठीक है, तो ये जो ATP की बाइंडिंग साइट है वो ब्लॉक हो गई, मतलब Fe कुछ काम का नहीं रहा, और Fe काम का नहीं रहा मतलब एंजाइम कुछ काम की नहीं रही। ठीक है, याद आप यही रखो कि Fe इनका टारगेट होता है, वहाँ पे ADP राइबोजिलेशन होता है एट द अर्जिनिन ग्रुप, यू कैन सी हियर इन द पिक्चर। एंड इससे जो है जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है वो ब्लॉक हो जाती है एंड आगे का प्रोसीजर नहीं हो पाता। यू कैन सी हियर इन द डायग्राम, यहाँ पे यू कैन सी द नाइट्रोजनेज रिडक्टेज इज़ एक्टिव। ठीक है, मतलब जब एक्टिव होना है तब वो ग्रुप रिमूव हो जाएगा, जब नहीं होना है वो ग्रुप ऐड होगा। कौन सा ग्रुप? ADP राइबोज ग्रुप। ठीक है, इतनी ही बात आपको याद रखनी है। सो दिस इज़ अबाउट इट। बात क्या आपको याद रखनी है? तो पहली तो ये कि भाई नाइट्रोजनेज एंजाइम को अपना काम करने के लिए, अमोनिया बनाने के लिए बहुत सारी एनर्जी लगती है, तो इसलिए इसका रेगुलेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है।
काम के टाइम पे काम, बाकी टाइम डोंट डू एनीथिंग. ओके, सो फॉर दैट थिंग देर इज सम रेगुलेशनल मैकेनिज्म एट द जेनेटिक लेवल ऑल्सो. तो जेनेटिक लेवल पे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल. ओके, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल किस में होता है? तो जनरली नोडुलेटेड और द सिम्बायोटिक एसोसिएटेड टाइप ऑफ द बैक्टीरिया और द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. उसमें क्या होता है? तो NIF जीन होता है जो मेन करता धरता है. उसको ब्लॉक कौन करेगा? NIFL. उसको एक्टिवेट कौन करेगा? NIFA. और NIFA को कंट्रोल करता है NTRC. ठीक है, और अगर उसको बंद करना है तो NIFL. ठीक है, ये 3 जीन्स आपको याद रखने हैं. उसके अलावा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जो होता है वो फ्री लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जो रूट्स के साथ नहीं रहते एसोसिएटेड, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो करते हैं. अब वो कैसे करते हैं? तो वो पोस्ट ट्रांसलेशनल करते हैं. मतलब क्या? सीधा उनका टारगेट प्रोटीन है. प्रोटीन मतलब कौन? एंजाइम. एंजाइम को ब्लॉक करते हैं. एंजाइम में जो 2 यूनिट्स होते हैं FE एंड MOFE, उसमें से FE को टारगेट करेंगे. FE पे जाके ADP राइबोस ग्रुप जाके ब्लॉक कर देंगे, जिससे क्या होगा? वो एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाएगी. और एंजाइम इनएक्टिवेट मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा, और जब ज़रूरत होगी वो ग्रुप रिमूव किया जाएगा ओकेजनली. ठीक है, सो दैट्स इट. ऐसा रेगुलेशन किया जाता है ऑफ द नाइट्रोजनेज, एंड ये रेगुलेशन किया जाता है क्योंकि एनर्जी वेस्टेज ना हो. तो अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है, you need any help, you can contact me. Okay, thank you.